Hello dear students, this is Dr. Arshad Hussain. This is the first video uploaded by me. I request all of you to watch it and share it if it seems to be helpful or beneficial to anyone by any means or one way or other way. The intention behind the video is to make you aware about the online examination scheduled to be held from 1st of July 2021 for PG third semester students. Before coming to the main agenda of this video, I find it necessary and obligatory to highlight some problems faced by students as well as teachers in this catastrophe, pandemic, or what you say as COVID-19. As you know that COVID-19 has a volcanic impact on all of us with teachers, students, learners and leaders. Overnight homes were changed into classrooms and schools and colleges impelled into virtual space. The new variants and waves of this catastrophe for COVID-19 are forcing all of us to embrace a virtually real education world that is plagued or surrounded by challenges but is rich in opportunity, and this is the only way we have, this is the only option we have till now. This new method is the only possible solution to this catastrophe. However, challenges faced by students everywhere as they navigate this new world are immense and countless. The absence of human interaction and social connectivity. This is one of the biggest problems when we come to online education. Second thing is that adapting to the changed home environment as parents and their children work, study and play home together. Establishing a daily routine, finding a quiet, undisturbed space for studying, keeping all the systems on mute. Even the babies are not allowed to say anything, cry. Everything we want to be calm, quiet and calm. The fourth and the last one, overuse of mobile phones, overuse of technology, overuse of electronic gadgets. It impacts our health very badly, especially the eyesight. These are the general problems faced throughout the world, but when it comes to Kashmir, the story is different and unending. A country without post office, but Aga Shahid Ali says, has a different tale to tell, has a different story to narrate. The technical problems, the internet, the technical problems we have, I think at present we don't have any solution to all these things. The connectivity, internet connectivity makes us sometimes mad because we have to switch to 2G, 3G, 4G. How many Gs are there? One gets confused. As of now, you all know that online exam for semester 3rd is scheduled to be held from 1st of July 2021. I am talking of GDC Uttarsur in particular and all the colleges of the valley affiliated with the University of Kashmir in general. We got number of calls from our beloved students about the pattern of examination, about the timing of examination, about the method of examination, because as I told you, we are still unaware about this technical world. We are still unaware about this new mode of education. If a teacher like me is not aware all about these tragedies, how come a student? The student faces so many other problems which are not in our minds, but the responses, the queries, the question is frequently asked by students. I am here to answer all of those. I think this is
what I can do right now. The first problem that we face, as you know, it is not examination for 2019 batch only. It is examination for 2016, 17, 18 and 19 batch. This is the current batch which we have. What we can say as regular batch. Plus, not only this regular batch, plus we have what we call them fresh graduates. And the first problem which we all face, that is the repeated change of the syllabus. A big thanks to Kashmir University for not static at any point. If they watch this video, I requested them that there should be a limited period. There should be a constant period for syllabus. It should not be changed. There should be no change frequently semester wise that makes more teachers and students mad. This is the first point to be noted. We have already shared our numbers, the numbers of the teachers who are concerned with the examination process. We have already shared their numbers through various platforms, through Facebook, through WhatsApp, through college website, etc., etc. But still, students belonging to far-flung areas, they face major problems. Now the only solution, the only way which we have this time is to be in contact with the teachers, to be attached with the platform of the college, associated with the platform of the college, and especially the teachers. We have batches of, as I told you, 16, 17, 18. We call them backlogs. Backlog students. Those students who have appeared in 1, 2, 3 subjects, they come into the category of 2016, 17 and 18. Now this 19 is the regular batch of our college, plus fresh private students. They might have taken their registration, they might have been registered in 2019 also, or before that, whatsoever. For general students, for BA students, or batch 16, 17 and 18. Remember this thing, guys. For art students or BA students or batch 16, 17 and 18. I think they are not aware about the syllabus. उनको शायद syllabus के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है. I have the copy of syllabus with me. We have 4 units in our syllabus. Unit number 1, grammar is in use. Unit number 1, grammar. Unit 1. ये grammar portion है. And in grammar, you have to revise, read tenses and articles. Grammar में आपको tenses और articles पढ़ने हैं. There will be a different video for them. उनको मैं revise करा दूँगा because it is long time now since 2016. 16 से बहुत अरसा गुजर गया होगा. You might have forgotten things. चीजें इंसान जल्दी भूल जाता है. तो I will come to that later. उस पर फिर बात करेंगे. जो unit second है उसमें यूनिट सेकंड उसमें राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स जिनको आप बोला करते हैं, या इंग्लिश साउंड सिस्टम. इसमें एक आपकी पंक्चुएशन है, दूसरा आपका फोनेटिक सिंबल्स है. एक आपकी पंक्चुएशन है और फोनेटिक सिंबल्स है. इसमें है वो है पोएट्री सेक्शन.
पोएट्री सेक्शन में यू हैव टू गो थ्रू विलियम शेक्सपियर सोनेट नंबर 2, सोनेट नंबर 3 एंड सोनेट नंबर 18. You have to go through John Milton, 2 poems of John Milton on his blindness, on his having arrived at the age of 33. You have to go through William Blake, 2 poems of William Blake, London and the Garden of Love. This is unit number 4. And unit number 4, essay or short stories. You have to go through Charles Lamb's essay. Charles Lamb का एक essay है, Dream Children नाम है. लियो टॉलस्टॉय का है How much land does a man need? And सादत हुसैन मंटू का है टोबा टैक्सी. These are the contents. This is the syllabus. I will share it. ये syllabus भी मैं आपसे share कर दूँगा. But this is for batch 16, 17, 18. For batch 16, 17 and 18, you have 6 credits. ये जो इस बैच की बात कर रहा हूँ मैं 16, 17 और 18, उनका टोटल क्रेडिट्स जो है 6 क्रेडिट्स में 60 MCQs होंगे, 60 MCQs, यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंड each objective carrying a marks weightage of 1.5. that means the paper will be of 90 marks. पेपर जो होगा वो 90 मार्क्स का होगा. 6 क्रेडिट्स, एक क्रेडिट के 10 ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, 6 क्रेडिट्स के 60 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और टोटल में 90 मार्क्स होंगे. बिकॉज an objective carries a weightage of 1.5. This is for batch 16, 17 and 18. But we have another problem here. और एक प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पे. और एक प्रॉब्लम ये है कि 2018 से हमारे कॉलेज में, डिग्री कॉलेज उदरसू में मेडिकल चालू हुआ. 2018 से जो मेडिकल चालू हुआ उनके लिए अलग सिलेबस है. उनके लिए अलग सिलेबस मैं बताना चाहूंगा. अच्छा, ये बीएससी के लिए, ये रहा बीए वालों के लिए पूरा पोर्शन. अब बीएससी वालों के लिए कैसा हो सकता है? बीएससी वालों के लिए पहले सिलेबस देख लेंगे हम, उसके बाद उस पर चर्चा होगी. बीएससी वालों के जो बीएससी 2018 बैच, उनके लिए टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स 2 हैं, यानी कि एमसीक्यूज 20 होंगे 1.5 मार्क्स के हिसाब से. 35 मार्क्स का उनका पेपर हो, 20 ऑब्जेक्टिव्स होंगे. उनका जो सिलेबस है, क्योंकि 2 क्रेडिट कोर्स है, उनका सिलेबस है यूनिट 1 में उनका ग्रामर है, मैं ये शेयर भी कर दूंगा. यूनिट 1 में उनका ग्रामर है और ग्रामर में उनको टेंसेस और आर्टिकल्स पढ़ने हैं. यूनिट 2 में है उनका राइटिंग. यूनिट 2 राइटिंग या इंग्लिश साउंड सिस्टम. इसमें प्रोनाउंसिएशन होगी, आई एम सॉरी, इसमें पंक्चुएशन होगी और इसमें फोनेटिक सिंबल्स होंगे. मैं अलग से शेयर भी कर दूंगा क्योंकि वीडियो का टाइम भी ज्यादा जा रहा है, लंबा जा रहा है. वीडियो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है. तो उनको सिर्फ इतना पढ़ना है, सिर्फ 20 MCQs होंगे, 30 मार्क्स होंगे. नाउ आई विल कम टू द प्रेजेंट बैच. अब मैं प्रेजेंट बैच की बात करूंगा. चलो अब पहले बीए की बात करते हैं. जो हमारा प्रेजेंट बैच है बीए का, उसमें क्या है, अब मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा. प्रेजेंट बैच जो है हमारा है आर्टिस्ट की बात करते हैं. जो 2019 बैच है, यानी कि जो रेगुलर बैच अभी कॉलेज का है हमारा 3rd सेम का, उसमें 4 क्रेडिट्स हैं. तो 4 क्रेडिट्स जिसके 40 MCQs बन जाएंगे. There will be 40 MCQs and carrying a weightage of 1.5 and the paper will, the total marks will be 60. 60 मार्क्स का पेपर होगा. उनका जो सिलेबस है, यूनिट 1 में उनको 1 एक्ट प्ले पढ़ना है. द न्यू हैंगमैन ड्यूरेनस ओसमैन का है. उनके 2 ऐसे हैं, विंग्स ऑफ फायर, हालांकि दिस इज नॉट एन ऐसे, एंड एक्सट्रैक्ट, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, एक पोर्शन निकाला गया है ऐसे का, विंग्स ऑफ फायर बाय एपीजी. और दूसरा वन वर्ल्ड वन कल्चर. ये हो गए उनके 2 यूनिट्स. यूनिट 3 में उनका पोइट्री है. पोइट्री में द चिमनी स्वीपर पढ़ना है, विलियम ब्लेक की लिखी गई है. पोस्टकार्ड फ्रॉम कश्मीर, डाका न्यूज, आगा शाहिद ने लिखी. ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, WB. और फिर यूनिट 4 में है
दो शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है, एक लॉटरी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, दूसरा द बैट एंटन चीको ने लिखा है। एंड देयर विल बी 40 MCQs, उनसे 40 MCQs है, राइट। आई विल कम टू द बीएससी सेक्शन। हाँ, जो बीएससी की बात करेंगे, 2019 बैच की बीएससी की बात करेंगे। हाँ, उनका सिलेबस क्या है? हाँ, उनका वन एक्ट प्ले जो है द न्यू हैंगमैन, सेम वहां, और ऐसे जो दो है विंग्स ऑफ फायर, दूसरा वन वर्ल्ड वन कल्चर, उनके सिर्फ दो ही यूनिट्स हैं। 2019 जो बीएससी होगा, यानी उनको भी दो ही क्रेडिट्स बन जाते हैं, उनके सिर्फ 20 MCQs होंगे और 1.5 के हिसाब से होंगे, यानी देयर विल बी 35 मार्क्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं वो ये है कि आधे बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है, कोई पापा का इस्तेमाल कर रहा है, कोई ब्रदर का इस्तेमाल कर रहा है, खासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, क्या वो किसी दूसरे का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स यू कैन। नोबडी इज गोइंग टू फोर्स यू टू परचेज अ मोबाइल फोन ऑफ योर ओन। अगर आपके भाई के पास है, किसी बहन के पास है, आप कर सकते हो। ये सवाल बहुत बच्चों ने पूछा था। दूसरा, ईमेल आईडी, उसमें एक ईमेल आईडी देना ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। ईमेल आईडी आप खुद की बना सकते हो। इट टेक्स 2-3 मिनट्स टू क्रिएट अ ईमेल आईडी। बेहतर होगा अपने नाम से बना दो, अच्छी बात रहेगी। तीसरा है सर टाइम। टाइम के लिए मैं बता दूंगा, अगर 60 MCQs होंगे, 60 MCQs के लिए देयर विल बी 60 मिनट्स। इट इज नॉट अप टू मी। मेरे पास इसका कोई ना, मेरे पास उसकी कोई कुंजी है, neither I can help you there, ना मैं वहां कोई मदद कर सकता हूं। After 60 minutes, the link will automatically expire, लिंक ही एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, he will contact the coordinator of the examination। सब coordinator examination से उस टाइम बात कर सकता है। Now I will come to about the pattern of paper। पैटर्न क्या होगा पेपर का? Though I am not the पेपर सेटर, पेपर मुझे सेट नहीं करना है, बट एज पर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जैसा मुझे तजुर्बा रहा है इन चीजों का, क्वेश्चन इज लाइक दिस मे बी आस्क्ड। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से उनका ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी। फॉर इंस्टेंस टेंसेस में है, टेंसेस में अगर क्वेश्चन आएगा हैबिचुअल एक्शंस आर रिटन इन, हैबिचुअल एक्शंस को हम किस में लिखते हैं? हैबिचुअल एक्शन, इनको हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, आप कर सकते हो। या पंक्चुएशन मार्क्स में ये जो फोनेटिक सिंबल्स में है, अगर यहां पे मैं एक वर्ड लिखूंगा थिंग, ये जो ये अंडरलाइन किया होगा, ये कौन सी साउंड है? थर्ड साउंड जिसे हम कहते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। या शेक्सपियर सोनेट्स पे क्या आ सकता है? हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे? 154। या हाउ मेनी प्रोक्रिएशन सोनेट्स आर देयर? देयर आर 18 सोनेट्स, प्रोक्रिएशन सोनेट्स जिनको हम कहते हैं। विलियम ब्लेक का आ सकता है लंदन, जो पोएम है उसकी लंदन, लंदन में एक रिवर का नाम है, रिवर का जिक्र है, व्हाट्स द नेम ऑफ द रिवर, ऐसे आ सकता है। ड्रीम चिल्ड्रन जो है चार्ल्स लैम्ब का, वहां 2 बच्चों का जिक्र किया गया है, जॉन एंड मैरी, ये आ सकता है कि नाम क्या है उनके, ऐसे आ सकते हैं। फिलहाल एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग मोर। यहाँ पे मैं कोई और चीज डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। माय कांटेक्ट इज ऑलरेडी देयर। इफ यू डोंट हैव, इट इज 9906669801। इस पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम यू वांट, फिजिबल टाइम, सुटेबल टाइम जो आपको लगेगा उस टाइम आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर फर्दर डिस्कशन। या कोई क्वेरी होगी, कल से कुछ शॉर्ट वीडियोस आ जाएंगे, उनमें मान लो जिसको आप बहुत से बच्चों ने तंग किया कि सर गैस में दे नहीं सकता, बट एज पर माय नॉलेज, एज पर माय एक्सपीरियंस, देयर आर सम रिपीटेड क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली इन ग्रामर, ग्रामर में खासकर, तो उन चीजों को मैं रिपीट कर दूंगा। बीए के लिए अलग कर दूंगा, बीएससी के लिए अलग कर दूंगा। रही बात जो बैच 2016, 17 और 18 है, उनके लिए मैं आर्टिकल्स, टेंसेस
और जो ये पोइट्री सेक्शन है उसका रिवीजन करा दूंगा। यू हैव स्टिल 4 और 5 डेज, अभी 4-5 दिन है एग्जाम के लिए। इंशाल्लाह दीज वीडियोस विल डेफिनेटली हेल्प यू। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह मदद होगी, तजुर्बा है इंशाल्लाह। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर सेटर, माइंडसेट ऑफ पेपर सेटर। पेपर सेटर कैसा होगा, आई एम नॉट श्योर दैट वायर फ्रॉम ही विल बी, कहाँ से होगा वो ये भी नहीं जानते हैं, बिकॉज द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। लेकिन पढ़ाते हम लोग हैं, बहुत टाइम से पढ़ाते हैं। अपने तजुर्बे, अपना जो हमारा तजुर्बा है, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस। मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लूँगा। कल और वीडियोज आ जाएंगे, उसमें आपको एक रिवाइज भी करा देंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं उनका भी जवाब दिया जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं तमाम को बेस्ट करता हूँ। इट इज़ माई रिक्वेस्ट, मेरी गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख लोगे, उसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अगर आपको लगता है इट इज़ बेनिफिशियल, उससे थोड़ा फ़ायदा आया तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आगे के वीडियोस आपको मिल जाएंगे।